Hello everyone. Welcome to Geography class 7th chapter 1 Environment. Before starting the chapter, we will read a story that is given in the chapter about a student whose name is Ravi. वो स्कूल जाता था जब वो लॉन्ग वेकेशन के बाद हॉलीडेज़ के बाद जब वो स्कूल गया. व्हाट डज ही नोटिस? उसने क्या नोटिस किया कि प्लेग्राउंड जो उसकी क्लास के बाहर था उसको डक किया गया है. उसने देखा वहाँ पर उसके स्कूल के साथ जो प्लेग्राउंड था उसको डक किया गया है और उसके ऊपर एक ह्यूज बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की जा रही है. कंस्ट्रक्ट मीनिंग बनाई जा रही है. रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स. रवि की आंखों में आंसू आ गए जब उसने देखा. उसने सोचा कि वहाँ जो बहुत बड़ा प्लेग्राउंड था उसके ऊपर सॉफ्ट ग्रास था, मैरीगोल्ड के फ्लावर थे, वहाँ पर बटरफ्लाइज भी थी. ठीक है. उसने अपनी जो फीलिंग्स थी वो अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर किया. उसने उनको जब वो असेंबली में गए तो प्रिंसिपल सर ने भी वहाँ पर बोला भी हमारा जो एनवायरनमेंट है वो कैसे चेंज हो रहा है. ठीक है जी. देन रवि पुट अ क्वेश्चन टू हिज टीचर, what is environment ma'am? And teacher replied, whatever you see in your surroundings. टीचर ने क्या बताया? जो आप अपनी सराउंडिंग्स में देख रहे हैं, अपने आसपास देख रहे हैं, दैट इज़ एनवायरनमेंट. रवि ने बोला मैम इसका मीनिंग है स्कूल बिल्डिंग, टेबल, चेयर इन द क्लासरूम, even that open field, the road, the garbage and my friends, all are parts of environment. Ravi said that all these things are the part of environment. Even his friends, garbage, roads. Teacher said yes. Teacher ने क्या बताया भी ये ठीक है, yes है जी. Some object are created by nature. टीचर ने बोला भी कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो नेचर के द्वारा क्रिएट किए गए हैं, जैसे माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, trees, animals, grasslands, so many other things. Other are made by people. Other things are human made. For example, roads, cars, clothes, books, etc. Then students sit in the pair and they starts working on it, and they have to write the name of the things that included in the environment that created by nature and by human beings. Now see in the blue part, we can start the chapter. Environment is our basic life support system. Environment है जो वो हमारी लाइफ का एक सपोर्ट सिस्टम है जो हमें एयर देता है ब्रीथ करने के लिए, वाटर देता है ड्रिंक करने के लिए, और फूड देता है जो हम खाते हैं, और लैंड देता है यहाँ पर हम रहते हैं. Then question raises, how do human beings modify this natural environment? जो human beings हैं वो इस natural environment को modify क्यों कर रहे हैं? The car fumes pollute the air. जो कार से धुआं निकलता है वो एयर को pollute करता है. Water is collected in a pot, food is served in vessels and land is used to build factories. But water है जो एक pot में collect किया जाता है, फूड है जो वेसल्स में सर्व किया जाता है, उसी तरह जो लैंड है वो फैक्ट्रीज बिल्ड करने के लिए यूज़ की जा रही है. ह्यूमन बींग्स हैं जो उसने कार्स बनाई हैं, मिल्स बनाई हैं, फैक्ट्रीज बनाई हैं एंड इवन मैन्युफैक्चर कंटेनर्स. दिस इज़ हाउ ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई नेचुरल इन्वायरमेंट. इसी तरह जो ह्यूमन बींग है वो इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कर रहा है. ठीक है जी. इन दिस चैप्टर वी रीड अबाउट एनवायरमेंट. Environment is a term derived from French word environner. French word environner. ठीक है जी. It is a detailed study of basic life support system which is affected by the place, people, things and natural surroundings that a living organisms has. As a result, we say environment includes both natural and human made phenomena. Have you understand this, all these things? Now we can study about components of environment.
Components of environment is divided into three parts. One is natural, second one is human made, third one is human. Environment has three components. One is natural, second one is human made, third one is human. There is a slight difference between human made and human components. Let us talk about natural environment. In simple words, land, air and water. Land, air and water. You already read about biosphere in your class 6. Biosphere consists of three basic aspects. One is lithosphere, second one atmosphere and third one is hydrosphere. All these three, when merge, form the biosphere. जब ये तीनों मर्ज हो जाते हैं, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर, जब तीनों एक जगह पर मर्ज हो जाते हैं तो क्या क्रिएट होता है? बायोस्फीयर. वहाँ पर क्या होता है? बायोस्फीयर आ जाता है. वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन एग्जिस्ट. वहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं. बायोस्फीयर इज़ अ नैरो जोन वेयर लाइफ एग्जिस्ट. वहाँ पर लाइफ है जो वो पॉसिबल है. देन human made. Human made factor is a factor that is made by human beings. जिसको किसने बनाया है? ह्यूमन बींग्स ने बनाया है. जैसे बिल्डिंग्स हैं, पार्क्स, ब्रिजेस, रोड्स, इंडस्ट्रीज, मॉन्यूमेंट्स. all these things are made by human, so these are human made factors. Then come to human. फर्स्ट वी आर इंडिविजुअल. हम एक इंडिविजुअल होते हैं. देन इंडिविजुअल जब इकट्ठे हो जाते हैं उससे फैमिली बन जाती है. देन फैमिलीज़ के साथ जब कई फैमिलीज़ इकट्ठी हो जाती हैं तो उसके साथ एक कम्युनिटी बन जाती है. नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट अफेक्ट अ पर्सन, दैट इज़ रिलीजन, कल्चर, देयर एजुकेशनल जोन्स, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सिचुएशन, level of education, all these affect human mortality and human setup. These are three basic components under which are environment divided: natural component, human made component, human component. Now come to next. हमने क्या अंडरस्टैंड किया है? व्हाट इज एनवायरनमेंट? द प्लेस, पीपल, थिंग एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट. यो प्लेस, कोई लोग और कोई चीज़ जो हमारी नेचर है, हमारी सराउंडिंग्स हैं, जब वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सराउंड करती है तो उसे एनवायरनमेंट कहते हैं. Then it is a combination of natural and human made phenomena. Environment is a combination of natural and human made phenomena. दो चीज़ों का combination है. One is natural, second one is human made. Natural means कुदरती, human made means जो लोगों ने बनाई है. Then while natural environment refers, natural environment classified into two groups. One is biotic and other one is abiotic. Biotic means the region where life exists. वहाँ पर life होती है. Biotic means living things where life exists. For example, plants, animals. Then come to abiotic, the world of non-living elements, the region where there is no life. Where there is no life, that is called abiotic. Natural environment is classified into two groups. One is biotic, other one is abiotic. Biotic means living things
Abiotic means non-living things. Next, we will discuss about natural environment. Land, water, air, plants and animals comprise the natural environment. जो लैंड है, वाटर है, एयर है, एनिमल्स और प्लांट्स हैं, उससे हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट बनता है. जैसे हमारी लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर में आपने जो चारों जोन्स के बारे में अपनी प्रीवियस क्लास में रीड किया है. दीज आर द डोमेन्स. फर्स्ट वी कैन रीड अबाउट लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर वो क्रस्ट है, एक सॉलिड क्रस्ट है और हार्ड टॉप लेयर है अर्थ की. ठीक है जी. इट इज़ मेड अप ऑफ, जो किसकी बनी हुई है, रॉक्स और मिनरल्स की, जिसको कवर किया हुआ है सॉइल ने. ये एक इरेगुलर सरफेस है जिसके ऊपर वेरियस लैंडफॉर्म्स हैं, जैसे माउंटेन्स, प्लेट्यूज और प्लेन्स. लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स, आल्सो ऑन द ओशन फ्लोर्स. लिथोस्फीयर वो डोमेन है, यहाँ पे फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ग्रेजिंग, ग्रासलैंड्स होते हैं, वहाँ पे ग्रेजिंग करते हैं एनिमल्स. ठीक है जी. लैंड होती है, यहाँ पे एग्रीकल्चर होती है, खेती बाड़ी का काम होता है, और ह्यूमन सेटलमेंट्स, यहाँ पे लोग रहते हैं. इट इज़ आल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ. देन कम टू दिस पॉइंट. सी दिस पिक्चर. देयर आर हाइड्रोस्फीयर, वहाँ पर वाटर है. एटमॉस्फियर, यहाँ पे एयर है. लिथोस्फीयर, वहाँ पे लैंड है. और बायोस्फीयर, जहाँ पे तीनों क्या हो जाते हैं, कंप्राइज हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं. तीनों क्या हो जाते हैं, इंटरेक्ट हो जाते हैं. ठीक है जी. जहाँ पर ये तीनों मिल जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्ट हो जाते हैं. ठीक है जी. वहाँ पर बायोस्फीयर क्रिएट होती है. द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर टू एज हाइड्रोस्फीयर. यहाँ पर पानी होता है, उसे हाइड्रोस्फीयर कहते हैं. इसके बीच क्या आ जाता है, वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर आ जाते हैं, डिफरेंट वाटर बॉडीज आ जाती हैं, जैसे रिवर्स, लेक, सीज, ओशंस, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एक एसेंशियल हैं, वेरी एसेंशियल पार्ट हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, बहुत ज़रूरी हैं. एटमॉस्फेयर क्या होता है, एक थिन लेयर होती है एयर की, जो अर्थ को सराउंड करती है. ये अर्थ, इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स है जो अर्थ की, वो एक होल्ड बना के रखती है एटमॉस्फेयर का अपने ऊपर. इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल रेज, जे हमें हार्मफुल रेज से बचाती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज से. इसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वाटर वेपर्स होते हैं. जब एटमॉस्फेयर चेंज होता है तो उसके साथ वेदर और क्लाइमेट भी चेंज हो जाता है. प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर. जहाँ पर जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं उससे मिलने से क्या बन जाता है, बायोस्फीयर बन जाता है. जो एक नैरो जोन है अर्थ की, जहाँ पर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, और वो लाइफ को सपोर्ट करते हैं. यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है. नाउ वी कैन अगेन सी दिस पिक्चर. There are 4 zones. One is atmosphere, hydrosphere and lithosphere and biosphere. जहाँ पर बेटा ये तीनों एटमॉस्फियर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर तीनों जो इकट्ठे होते हैं, ठीक है, जो इनका सेंटर बन जाता है, वहाँ पर बायोस्फीयर बन जाता है. ठीक है. जहाँ पर ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं, हाइड्रोस्फीयर भी आ जाता है, एटमॉस्फियर भी आ जाता है और लिथोस्फीयर भी आ जाता है. लैंड, वाटर एंड एयर, जहाँ तीनों जो चीज़ें बन जाती हैं वहाँ पर मिल जाती हैं, इंटरेक्ट हो जाती हैं, वहाँ पर बायोस्फीयर आ जाता है, क्योंकि बायोस्फीयर के ऊपर ही हमारी लाइफ है वो एग्जिस्ट करती है. हम बायोस्फीयर पर ही, जो लिविंग थिंग्स हैं वो बायोस्फीयर में ही रहते हैं. ठीक है. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, इकोसिस्टम. व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम है जो, वो इकोलॉजी और इन्वायरमेंट है. ठीक है, उसके साथ ही रिलेटेड हैं. इकोसिस्टम एक क्या है, वो ऐसा सिस्टम है जिसमें हम इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट की सम्बिशन होती है.
इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है वहाँ यहाँ इकोलॉजी और इन्वायरमेंट की सम्बिशन होती है, जिसका मीनिंग क्या है, व्हेन इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट कम्स इनटू प्ले टुगेदर, जहाँ पर इकोलॉजी और इन्वायरमेंट इकट्ठे हो जाते हैं, इट इस्टेब्लिश्ड इकोसिस्टम। तो क्या इस्टेब्लिश हो जाता है, इकोसिस्टम इस्टेब्लिश हो जाता है। नाउ सी दिस, एक एनसीसी कैंप में रवि की क्लास ने अटेंड किया, वहाँ पर किसी ने एक्सप्लेन किया बट ए हैवी डाउनपोर। उसने क्या रिमाइंड किया कि माई होम कहाँ है, मेरा घर कहाँ है, केरला में है। आप वहाँ आओ और देखो पोर्स एंड पोर्स ओवर द लश ग्रीन फील्ड्स एंड कोकोनट प्लांटेशंस। वहाँ पर बहुत अच्छे कोकोनट के प्लांटेशंस हैं, ग्रीन फील्ड्स हैं। ठीक है, हीरा ने क्या एक्सप्लेन किया, हमारे यहाँ रेन नहीं होती, हमारे यहाँ सिर्फ कीकर होती है, सैंड होती है। यहाँ पर हमारे जहाँ तक हम देख सकते हैं वहाँ पर सिर्फ कीकर होती है और सैंड होती है, रेतला इलाका है वहाँ पर सिर्फ। रवि ने क्या बोला, बट यू ऑल्सो फाइंड कैमल्स, वहाँ पर आपको कैमल्स मिलते हैं, वहाँ पर रेन कम होती है और कीकर और सैंड होती है। दिस इज़ अ पॉन्ड इकोसिस्टम। Here deer, buffalo, duck, stream is there, birds are sitting on the trees, so many plants are there, ठीक है जी, that is growing in water also, some are growing outside the water. This is a pond ecosystem. Then Hira says not just camels, सिर्फ कैमल ही नहीं, जब आप डेजर्ट में विजिट करोगे, डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान, तो आप यहाँ देखोगे वहाँ पर स्नेक्स भी होंगे, लिजर्ड्स भी होंगी, बहुत सारे इंसेक्ट्स भी हैं वहाँ पे। देन रवि वंडर्ड, इसने बोला जो एनिमल्स हैं और वेजिटेशन है और लोग हैं, क्या वो वेरी करते हैं प्लेस टू प्लेस, वो डिफरेंट होते हैं, जगह जगह के लोग होते हैं, जो पीपल होते हैं, लोग होते हैं। आर दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, क्या वो एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। ओ यस, टीचर ने रिप्लाई किया यस, वो एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, चाहे वहाँ पर सर्दी है चाहे वहाँ पर गर्मी है। वन थिंग मोर बेटा, सम थिंग्स आर गिवन आउटसाइड इन द ब्लू बॉक्सेस, दैट इज इम्पॉर्टेंट। आवर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5th June. ओके, देन कम टू द चैप्टर, ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड अपॉन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स। वो किसके ऊपर निर्भर करते हैं, उनकी जो सराउंडिंग्स हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है भी। एनिमल्स, जो प्लांट्स और ह्यूमन बीइंग्स हैं, ठीक है, उनकी जो सराउंडिंग्स हैं उनके ऊपर वो डिपेंड करते हैं, वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं। जो उनका रिलेशन है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, और एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म का रिलेशन है जो उसकी सराउंडिंग्स के साथ है, वो इकोसिस्टम फॉर्म करता है। जो रिलेशन है लिविंग ऑर्गेनिज्म, जब वो इंटरेक्ट करता है किसी अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, देन वो इंटरेक्ट करता है अपने एनवायरनमेंट के साथ। जब तीनों इंटरेक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, इकोसिस्टम फॉर्म होता है। देन देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, हर जगह का अपना इकोसिस्टम होता है। रेन फॉरेस्ट का अलग होता है, ग्रास लैंड का अलग होता है, डेजर्ट का अलग होता है, माउंटेन्स का अलग होता है, लेक, रिवर, ओशन, इवन अ स्मॉल पॉन्ड का भी जो इकोसिस्टम है वो डिफरेंट होता है। एवरी प्लेस हैव एवरी डिफरेंट इकोसिस्टम। 3 मेन थिंग्स हैं जो इकोसिस्टम को कोरिलेट करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, देन उनका जो रिलेशन होता है अगर अदर ऑर्गेनिज्म के साथ, देन उनका रिलेशन होता है सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ। क्या आप सोच सकते हो, पार्क के बीच में जो रवि और उसके फ्रेंड खेलते हैं उनका, वो भी एक इकोसिस्टम फॉर्म करते हैं। देन कम टू ह्यूमन एनवायरनमेंट, देन वन इज देयर, वाटर सिस्टम इज देयर, इट इज़ अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। जैसे हमने एक आदमी के पास ऑरेंज है और दूसरे के पास वीट है, वो एक दूसरे के साथ चेंज कर लेते हैं। जिसके पास वीट है वो उनको वीट दे देंगे, जिसके पास ऑरेंज है वो उनको ऑरेंज दे देंगे।
पैसे के साथ नहीं, वो थिंग्स के साथ एक दूसरे की चीज़ें जो एक्सचेंज करते हैं, दैट सिस्टम इज़ बार्टर सिस्टम। देन कम टू ह्यूमन एनवायरनमेंट। जब हम ह्यूमन एनवायरनमेंट की बात करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं जो इंटरेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट के साथ, तो उसको मॉडिफाई भी करते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। ऑल ह्यूमन बीइंग्स चेंज द एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। जब अर्ली ह्यूमन थे तो उन्होंने नेचुरल सराउंडिंग्स को अडेप्ट किया उनके अकॉर्डिंग। वो सिंपल लाइफ व्यतीत करते थे और उनके अपनी रिक्वायरमेंट थी, जो अपनी नेचर्स जो उनके अराउंड थी उसके साथ पूरी कर ली, रिक्वायरमेंट्स थी उनकी, उनको फुलफ़िल कर लिया। विद टाइम नीड्स, जब टाइम आगे को बढ़ा, एंड बिकम मोर वेरिड, तो वो आगे आगे और चेंजेस होती गई। ह्यूमन ने लर्न किया सो मैनी वेज टू यूज़ एंड चेंज इन्वायरमेंट। उसने नए ढंग पढ़े भी कैसे इन्वायरमेंट को चेंज करना है, ठीक है। उसने क्या क्या लर्न किया, हाउ टू ग्रो क्रॉप्स, क्रॉप्स कैसे ग्रो करनी है, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किमें करना है, और लेट द सेटल्ड लाइफ, और सेटल्ड लाइफ कैसे व्यतीत करनी है। पहले हमने रीड किया, जैसे हिस्ट्री में 6th क्लास में है, वो बताते हैं भी जो पहले अर्लियर पीपल थे वो सेटल्ड लाइफ में नहीं रहते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। फिर उन्होंने एक सेटल्ड लाइफ व्यतीत करनी शुरू की, व्हील इन्वेंट हुआ, देन फायर इन्वेंट हुई, आग की इन्वेंशन हुई। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जे हमारी, ठीक है। बार्टर सिस्टम इमर्ज हुआ, जैसे एक्सचेंज ऑफ गुड्स हुई विदाउट मनी। मैंने पहले आपको एग्जांपल देकर बताया है भी बार्टर सिस्टम क्या होता है। देन ट्रेड सिस्टम स्टार्ट हुआ, देन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ उसके रिजल्ट के साथ हमें ट्रांसपोर्टेशन की नीड महसूस हुई। ट्रांसपोर्टेशन फास्टर हो गया, जैसे एरोप्लेन्स आ गए, फास्टर ट्रेन्स आ गई। देन इंफॉर्मेशन ऑफ रेवोल्यूशन आया, जिसके साथ जो हमारी कम्युनिकेशन थी वो बहुत इजी हो गई। हम एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं, ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं, सो मैनी अदर थिंग्स आर देयर। हमारा जो वर्ल्ड था वो मोस्ट स्पीडी हो गया। नाउ इट्स अ ईरा ऑफ रेवोल्यूशन वेयर वी फोकस मोर ऑन इंफॉर्मेशन एंड रिलेटेड पैरामीटर्स। हैव यू एवर थॉट व्हाई आर यू लव ईटिंग अ यूसी वाटरमेलन इन समर? क्या आप सोचते हो भी आप वाटरमेलन समर में क्यों खाना पसंद करते हो, और विंटर में हॉट रोस्टेड पीनट्स खाना पसंद करते हो, मूंगफली के दाने? परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी। परफेक्ट बैलेंस नेसेसरी है किसके बीच में? ह्यूमन एनवायरनमेंट के बीच में और नेचुरल एनवायरनमेंट के बीच में, ठीक है। ह्यूमंस ने लर्न किया भी वो कैसे रहेंगे और एनवायरनमेंट को कैसे यूज़ करेंगे। देन वन मोर एग्जांपल इज़ देयर। नूरी एक गर्ल है जो मिज़ोरम में से है, वो रबी की क्लास में बात करती है अबाउट लश ग्रीन सराउंडिंग्स की। उसके प्लेस में लश ग्रीन सराउंडिंग्स हैं, तो रबी है जो वो अपसेट हो जाता है भी हमारा प्लेग्राउंड लॉस्ट हो गया। नूरी उसे इनवाइट करती है भी उसके होम स्टेट में आप आना आपकी वेकेशंस में। तो रवि की टीचर बच्चों को बताती है भी कैसे लैंडस्केप ड्रा करते हैं, हाउसेस और एक्टिविटी ऑफ पीपल एंड प्लेसेस दे विजिट ड्यूरिंग द हॉलीडेज़। उन्होंने टीचर ने बोला जब आप हॉलीडेज़ में जाओगे तो आपने देखना है भी आपने आपकी आसपास की जो सराउंडिंग्स है उसमें आपने देखना है और उनको ड्रॉ भी करना है, ठीक है। In this chapter we read about ecology, ecosystem and environment. They both correlate with each other. They know how living organisms interact with each other. So when I join these, I will say ecosystem is a functional unit which talks about interaction of living bodies in biotic and abiotic system. So you have ecosystem is a interaction or summation of ecology and environment. So this is a very fundamental list and they correlate with each other, environment, ecosystem and ecology. Okay, that's all. Thank you.